ہم سب نسبتوں کی وجہ سے مسلمان ہیں. مدینے والے کی نسبت، کلمے کی نسبت، اللہ جل شانہ کی محبت، پیار اور رب کو ماننے کی نسبت کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اگر آج ہماری یہ نسبتیں ہم سے ہٹ جائیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہو نسبت کے ساتھ اچھی لگتی ہے. پھول شاخ کے ساتھ ہے، پھول ہے. پتا درخت کے ساتھ ہے، درخت کا حصہ درخت ہے. وہی پتا جب نسبت سے ہٹ جاتا ہے، پاؤں تلے روند لیں کوئی حرج نہیں، جانور کھا جائے خوراک ہے. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. میرے مدینے والی کی نسبتوں کی برکتیں ازل سے لے کر ابد تک رہی ہیں اور رہیں گی. میرے مدینے والوں کی نسبتیں، میرے مدینے والی کی نسبتیں سدا قیامت تک، سدا قیامت تک رہیں گی اور ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی. نسبتوں کے ساتھ جو چیز نکلی ہے وہ بول ہیں، وہ ادائیں ہیں. اور میرے آقا کے قدم مبارک ہیں، میری آقا کی سانسیں ہیں، میرے آقا کا آرام فرمانا ہے اور میرے آقا کا پاؤں مبارک پھیلانا ہے. آپ کی چال ہے، آپ کے قدم ہیں، آپ کے شب و روز ہیں. اس چیز میں امت کے لیے خیریں رکھی ہیں اور اس کے اندر امت کے لیے برکتیں رکھی ہیں. کیسے؟ ہم تلاش کریں. ایک زندگی کا انوکھا نظام، مبارک نظام میرے مدینے والے نے میرے آپ کے لیے چھوڑا ہے. بہت مبارک نظام، بہت انوکھا نظام. وہ نسبتیں ہیں. میں نسبتوں کے ساتھ آج ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس ایک مسواک ہے جو کس کس کے چھوٹا ہو گیا ہے. یہ ایک پڑی لکڑی تھی، آج ایک پڑی لکڑی نہیں ہے. اس لکڑی کے یہ زیتون کا مسواک ہے، پیلو کا مسواک. پیلو کا درخت ہے، اس کا مسواک بھی بن سکتا ہے، زیتون کا مسواک بھی بن سکتا ہے. ایک لکڑی تھی، ایک درخت کی شاخ تھی، یا کاٹ کے کسی نے پھینک دی. کسی نے اس کو کاٹا، تراشا، تراش کے ایک مسواک کی شکل دے دی. اب اس کی نسبت اور ہو گئی ہے. اس کی مدنی نسبت ہے، اس کا احترام، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی شان و شوکت اور ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے میں اسکاٹ لینڈ گیا. کچھ اور دوست مل گئے. ایک بندہ مجھے ملا. کہاں سے آئے؟ کہہ رہے پاکستان سے آئے. کہنے لگا ہمارے ہاتھ پکڑے اور چومے. ہم تو آپ کو جانتے نہیں. کیا مطلب؟ جیب سے ایک رومال نکالا، ایک پوٹلی نکالی، ہینڈ کرچیف، چھوٹا جیبی رومال. اس کو کھولا، پھر تہ در تل کھولا، تہیں کھلتی چلی گئی. کھلتے کھلتے اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا نکلا. اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا نکلا اور اس کو آنکھوں سے ایسے چوما، لگایا. کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کے پاکستان سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ مسواک مجھے دی تھی اور کہا تھا یہ میرے آقا مدینے والی کی سنت ہے. پھر میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کی، پھر احتیاط سے استعمال کیا، اس لیے پھر تو ملے گی نہیں. اب کرتے کرتے اس کا ٹکڑا بچ گیا جو میرے ہاتھ میں نہیں آتا. اب میں نے برکت کے لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا اور مل سکتا ہے؟ اور پھر کہنے لگا میرے دل کی ہارٹ میمبرین، دل کی تھیلیوں میں پانی بھر گیا تھا. یہاں کی انگلینڈ کی سرجری بہت مہنگی، میرے پاس پیسے نہیں. کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہ مسواک کرتا رہے تیرے دل کی تھیلیوں میں جو پانی بھر گیا ہے
اور جس کا علاج صرف سرجری ہے، اور اگر اس کی کوانٹٹی، اس کی مقدار بڑھ گئی تو تیرا دل بالکل ختم ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں اپنے دیسی لفظوں میں کہوں، اسی میں ڈوب جائے گا. اور تیرے دل کے ڈوبنے کا نام تیری زندگی کا دن ڈوب جائے گا اور تو مر جائے گا. اور کہا میں پریشان ہوا. میں نے جب سے یہ مسواک کرنا شروع کیا ہے، مجھے اپنی چال، اپنے انداز میں راحت محسوس ہوئی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں صحت یاب ہو رہا ہوں. میں صحت یاب ہو رہا ہوں. اور پھر جب یہ مسواک ختم ہوا، میں نے بہت عرصہ اس کو مسواک کو کیا اور بہت احتیاط سے کیا. یہی کیا پھر ملے گا نہیں. بہت عرصہ مسواک کرنے کے بعد میں نے آپ کی جب اپنے ٹیسٹ کرائے، وہ کہتے تجھے تو کچھ نہیں، کس چیز کا ٹیسٹ کرا رہا. میں نے جب صاحب کا ٹیسٹ دکھائے، ان کی عقل دنگ رہ گئی. تیری سرجری نہیں ہوئی، بغیر سرجری کے کیا ہوا؟ اس نے کہ جی میرا دل کا جو ہے تھیلی کے اندر جو پانی تھا جھلیوں میں، وہ سارا ختم ہو گیا، تو ٹھیک ٹھاک ہے. تو کیا علاج کیا تو نے؟ اس نے کہ جی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ مسواک ہے. مسواک کرتے ہوئے میں جب تھوکتا تھا، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر تھوک کے ساتھ وہ پانی نکل رہا ہے. ہر تھوک کے ساتھ وہ پانی نکل رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا، صحت مند محسوس کیا، اور میں بالکل صحت مند اور پرسکون ہوں، اور میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. میرے مدینے والے کی ادا ہے، لکڑی کے ساتھ میرے آقا کی نسبت ہو جائے، وہ مسواک بن جائے. ایک اور صاحب کہنے لگے کہ میں امریکہ میں گیا، ایک نو مسلم جوان کو دیکھا، انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی اور پگڑی کے اندر یوں مسواک لگایا ہوا. ہاں، میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا سننا. ارے یہ سنت ہے بھائی، یہ سنت جیب میں رکھنے کی ہے، یہاں لگانے کی نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اس سنت سے پیار ہے، میں اس کو اپنے مدینے والے کے تاج بنائے پھر رہا ہوں. یہاں لگائے پھر رہا تھا. نو مسلم پگڑی کے اوپر کر کے، اور جیسے ہماری آرمی کی پولیس میں نا وہاں ایک خاص تاج بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے ایسے لگائے پھر رہا تھا. مسواک کے میڈیکلی فائدے، مسواک کے سنت کے روحانی فائدے، یہاں تک فرمایا میرے آقا نے، اور یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تجربات ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. جو شخص اس سنت کا اہتمام کرے گا، مسواک کا، آخری وقت میں رب شان کریمی کے ساتھ اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے. مسواک کرنے والے کے ساتھ حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے، مستند حدیث ہے، سنت ہے یہ، چونکہ اس کے ساتھ خاتمہ بالخیر کا وعدہ ہے. خاتمہ بالخیر کا وعدہ ہے. مسواک کرنے والے کے ساتھ خاتمہ بالخیر کا وعدہ ہے، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا وعدہ ہے. عجیب فائدے ہیں اس کے. جس جیب میں مسواک ہے، رب اس جیب کو لٹنے سے بچائے گا، اس کی چیز ضائع ہونے سے بچائے گا. رب جس جیب میں مسواک ہے، اس جیب کو رب خالی نہیں کرے گا، ہرا بھرا رکھے گا. جس جیب میں مسواک ہے، اس جیب کے ساتھ اللہ کی مدد اور ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک بڑی لکڑی تھی، ایک شاخ تھی، اس کے ساتھ ایک سنت ہوئی ہے، نسبت ہوئی ہے سنت کی، اور اس نسبت کی وجہ سے اس کی تاثیر بھی بڑھ گئی، اس کی عزت بھی بڑھ گئی، اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اس کی قوت بھی بڑھ گئی، اور اللہ جل شانہ کی نظر میں اس کی طاقت اور اس کی عظمت بڑھ گئی، اور اللہ نے اپنی شان کریمی سے اس میں طاقت ڈال دی. جس جیب میں میرے مدینے والے کا مسواک ہوگا اور کرتا رہے گا نماز کے وقت، وہ بیماریوں سے بچا رہے گا. انوکھی بیماریاں. کتنے لوگوں نے بتایا کہ مسواک کی وجہ سے ان کے گلاسز، ان کی اینکیں اتری. کتنے لوگوں نے بتایا کہ مسواک کی وجہ سے دائمی نزلہ اور ناک کی بڑی ہوئی ہڈی کا مسئلہ حل ہو گیا. اور کتنے لوگوں کے تجربات ہیں کہ جو کیڑا گرتا تھا دماغ سے، اکثر بلغم گرتا تھا، اور اس کے لیے بے شمار دوائیں، اینٹی بائیوٹک کھانی پڑتی تھی، وہ ختم ہو گئی.
कितने लोगों के तजर्बात हैं कि मिसवाक से याददाश्त और हाफजा, हदीस में भी है कि इससे हाफजा तेज हुआ, जिनके हाफजे कमजोर हैं, मेमोरी कमजोर है, ओ मिसवाक की वजह से हैरत अंगेज तौर पे उनको रिजल्ट मिले। मिसवाक सुन्नत है, सुन्नत की ताकत है, सुन्नत की तासीर है। जब सर हिंद में, इंडिया में मुल्क है जहां से हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिला जहां से चला, बड़े अल्लाह के वली थे, बड़े अल्लाह के दोस्त थे। हजरत का विसाल हो गया, तो हजरत के विसाल के बाद एक बंदा आया जो हजरत शेख अहमद सरहिंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में बैठने वाला था। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हासिल हुआ, मातरत में भूल गया, उनके मुर्शिद की खिदमत में शेख वाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठने वाला था। शेख वाकी बिल्ला के विसाल के बाद खिलाफत मिली हजरत मुजद्दिद को, तो आके कहने लगा कि आपने अपने मुर्शिद से क्या पाया? सुन्नत की इत्तबा पाई, मदीने वाले का इश्क पाया, आलो असहाब से मोहब्बत पाई, अल्लाह के नेक बंदों का अदब पाया, और जिंदगी में ख्यानतों को दूर करना और रिस्क के हलाल को कमाना, जिंदगी का यह तरीक पाया, सारा कुछ बताया। कल को करामत दिखाएं। फरमाने लगे अगर मैं मुआशरे के साथ सच्चा होकर चलूं और मुआशरे के साथ मेरी मिजाज में किसी मामलात में कहीं खयानत ना हो, इससे बड़ी खुद करामत नहीं है। वो बार बार इसरार करे कोई करामत दिखाएं। जैसे बाज बंदे कहते हैं सरकार कुछ दिखाओ तो सही। जिंदगी में अगर झूठ निकल गया और सच आ गया, खयानत निकल गई और दयानत आ गई, और मिजाज के अंदर अदब आ गया वालिदैन का, और बीवी के साथ मोहब्बत करने का, और उसके साथ अच्छे बोलने का, तो इसको हम समझते हैं ही कुछ नहीं। वो भी इसरार करे। आखिरकार उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है, आप अपनी करामत नहीं दिखाते तो फिर मैं शेख बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की खुद खिदमत में बैठने वाला आम सा बंदा, मैं फिर आपको अपनी करामत दिखाता हूं। उसने ऐसे जमीन पे हाथ मारा और सारा सर हिंद ऐसे हिलने लगा, जलजला आ गया। ये मेरी करामत, मैंने जमीन को हिला के रख दिया। शेख मुस्कुराए, ऐसे जेब से मिसवाक निकाला और हल्का से ऐसे जमीन पे मिसवाक मार दिया और जमीन वहीं ठहर गई। कहा कि और कोई दिखा? कहा मेरे पास यही था। कहा मेरे आका की एक छोटी सुन्नत है, कोई सुन्नत अदना नहीं, हर सुन्नत ऊंची है, छोटी या बड़ी। ये एक छोटी सुन्नत है, इसका ये कमाल और तेरी करामतों का अखीर, तेरी करामतों का सारा नचोड़ यही था कि तूने जमीन हिला के रख दी। ये तो कोई जोगी भी कर सकता है, हिंदू जोगी यहां बहुत रहते हैं, लेकिन मेरे मदीने वाले की ये सुन्नत का कमाल है कि मैंने इस मिसवाक को जमीन से बस थोड़ा सा टच किया, छुआ, और जमीन रुक गई। इस जमीन ने भी मिसवाक का हया। सुन्नत में ताकत और तासीर है, और सुन्नत में कुव्वत है। इस मिसवाक के एक और कमाल बताता हूं, और अनोखे कमाल बताता हूं, और अनोखी तासीर बताता हूं। जो बंदा इस मिसवाक को करने के बाद, मिसवाक का ये रुख, एक ब्रश की साइड का रुख होता है, एक ये रुख है जिससे हाथ पकड़ते हैं, सिर्फ आंखों से ऐसे आंखों के ऊपर फेर दे, जैसे सुरमे की सलाई, वो तो अंदर होती है, आंखों के ऊपर, बंद आंखों के ऊपर एक दफा ऐसे फेर ले और एक दफा ऐसे फेर ले, बस ऊपर से। इसकी तासीर अनोखी है। मैंने जब से यह साल हर साल से बता रहा हूं, मेरे अपकरी के वेबसाइट में मेरे मौजूद है दर्स, तकरीबन 1400 के करीब दर्स मौजूद हैं। आप उनमें चेक करें, देखें कि मैं बता रहा हूं, पूरा वर्ल्ड मेरी आवाज को अल्लाह पाक के बरकत से सुनता है। जब से यह बताना शुरू किया है, नजरें तेज हुई हैं, ऐनकें उतरी हैं,
ऐनकें उतरी हैं। एक दूसरा फायदा सुनिए इसका, नजरों में हया आया। ये नजरों का हया होता है, मां को किस नजर से देखना है, बेटी को किस नजर से देखना है, हाँ बहन को किस नजर से देखना है, और बीवी को किस नजर से देखना है। नजरों का हया आया, नजरों का शर्म आया। यह करने से कितने लोग ऐसे मुझे मिले जिनकी पलकें गिर रही थीं, और पलकें गिरने से आंख का हुस्न, चेहरे का हुस्न खत्म हो जाता है। मिसवाक की बरकत, मेरे आका की सुन्नत की बरकत। अरे जिस सुन्नत से सरहिंद की जमीन एक पल टच करने से हिल गई, वो तेरी सुन्नत छोटी सी तेरी आंख के मसले को हल नहीं कर सकती। चलो मैं एक और चीज बताता हूं, जिस सुन्नत की बरकत से आखिरी वक्त में कलमा नसीब हुआ, और आखिरी वक्त में कलमा नसीब ईमान पे मौत होना इस बात की दलील है कि मरने के बाद की सैकड़ों साल की जिंदगी नहीं, हजारों साल की जिंदगी नहीं, लाखों साल की जिंदगी नहीं, करोड़ों साल की जिंदगी नहीं, अब्दुल आबाद की जिंदगी है, उसका मसला हल हो जाए, मरने के बाद का सारा पैकेज मिल जाए। क्या इस मिसवाक ने मरने से पहले के पैकेज नहीं दे सकता? 60 साल की जिंदगी, 70-80 साल की जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी में काम नहीं बना सकता? जो मिसवाक मरने के बाद के काम बना ले, यानी खात्मा ईमान पे हो जाए। हजरत बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का खटिया वटिया, यानी मेरी जिंदगी का सारा निचोड़ यही है कि आखिरी वक्त में मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए। जो मिसवाक मरने के बाद के निजाम को ठीक करा सकता है, वो मरने से पहले के निजाम थोड़े से तेरे काम नहीं बनवा सकता। तेरे यकीन की कमी है, तेरे मेरे मानने की कमी है, हमारे अंदर के खुलूस की कमी है, हमारे अंदर के दर्द की कमी है, और सुन्नत की कदर नहीं, वो एहतराम नहीं, वो अदब नहीं, वो वकार नहीं। वरना ये मिसवाक पलकों का गिरना, नजरों का कमजोर होना। बाज ऐसे लोग मिले जिनको रात को नजर नहीं आता था, शब कोरी, नाइट ब्लाइंड, रात को नजर नहीं आता था, उनके मसले हल हुए, मुस्तकिल करता रहे। ए जोश जनू बेकार न रहे, कुछ खाक उड़ा वीराने की। ए जोश जनू बेकार न रहे, कुछ खाक उड़ा वीराने की। दीवाना भी बनना मुश्किल नहीं, सूरत तो बना दीवानों सी, और दीवानों की थोड़ी सी अदाएं तो कर ले, हाँ कर ले। आंखों के ऊपर लगा, आंखों के मसले, पलकों के मसले, आंखों के अंदर पानी बहना, और इस आंख में हया का आना, ये हया का सुरमा है, ये हया का काजल है, मिसवाक। हाँ, और जब हैरत अंगेज बात बताऊं, मिसवाक करने वालों के बारे में यहां तक तजर्बात मिले कि उनकी आंखें वो चीजें देखना शुरू कर देती हैं जो आंख नहीं देख सकती। मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा। बर्तन छोटे होते हैं, लोग उसको अजीबो गरीब अंदाज से ले लेते हैं, पर्दे हट जाते हैं। जैसे हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब कश्फुल महजूब, और लोग आओ, हिजाब से पर्दे हट गए। कश्फुल महजूब, जो पर्दे थे उन हिजाब थे, छुपी हुई राज थे, आओ मेरी किताब पढ़ो, उससे पर्दे हट गए। इसी तरह आंखों के पर्दे हट जाते हैं। अल्लाह कायनात के वो राज, कायनात की वो सरबस्ता चीजें, वो कायनात की खुफिया चीजें, वो कायनात की अनोखी कैफियत जो तेरी मेरी अमूमी नजर नहीं देख सकती। अल्लाह के कितने बंदे ऐसे हैं जिनको जिन्नात ऐसे नजर आते हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूं, और हमारी तारीख की किताबों में, तफसीर की किताबों में कितने बंदे ऐसे हैं जो फरिश्तों को ऐसे देखते हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूं। ये आंख से पर्दे हटा देते हैं, और जब पर्दे हट जाते हैं फिर क्या होता है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिरकार अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे दिल के जो कश्फ की दुनिया है और आंख से पर्दे हटाए हैं और दिल को कश्फ दिया है, इसको हटा दे, खत्म कर दे। क्यों? वुजू करते हुए उस पानी में उसके गुनाह गिरते धुलते आंखों से देख लेते हैं। ठीक, दिल के अंदर क्या है, क्या सोच के बैठा है, कीना है, बुग़्ज़ है, सच है, झूठ है, ईमान है, क्या है, पढ़ लेते थे। अल्लाह अल्लाह सुझा देता था, हत्ता के गुस्ल का पानी जा रहा, उसके गुनाह उसके पढ़ लेते थे। फरमाने लगे मौला मखलूक के ऐब खुलते हैं, ये कैफियत मुझसे हटा ले। आंखों से बहुत पर्दे हट जाते हैं। जब पर्दे हट जाते हैं फिर अल्लाह दिल भी देता है, बर्तन भी देता है, हिल्म भी देता है, सीने भी देता है। जब भैंस को दूध मिल जाता है, भैंस का थन इतना बड़ा होता है, बकरी का दान छोटा सा होता है, यूं फूल जाता है, यूं फूल जाता है। भैंस को अल्लाह जब देता है तो फिर उसके अंदर बर्तन भी बड़ा होता है। जब रब तेरे पर्दे खोलेगा बर्तन भी बड़े होंगे। हाँ, फिर दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कुन फिर दुनिया गरीबन, ऐसे दुनिया में रहे तुझे कोई पहचान ना सके। कुन फिर दुनिया गरीबन, गरीब कहते हैं मुसाफिर परदेसी, उस बेचारे को कौन पहचाने। कुन फिर दुनिया गरीबन, आंखों से पर्दे हट जाते हैं, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। तुझे कोई पहचाने या ना पहचाने जरूरी नहीं, अल्लाह कायनात के राज दिखाता है मिसवाक की बरकत से। अरे मिसवाक को सिरहाने रख के सोया करो, इसकी बरकत अजीब है, मैं क्या बताऊं आपको। इसको जेब में रखा करो। हत्ता कि यहां तक कि इस्तेमाल किया हुआ मिसवाक है, इस्तेमाल किया हुआ मिसवाक, और ये आपकी गाड़ी के आगे पड़ा हो, स्क्रीन के आगे जगह है वहां पड़ा हो, आगे खाने में पड़ा हो, आगे के बॉक्स में पड़ा हो। अल्लाह हादसों एक्सीडेंट से बचाता है। मोटरसाइकिल के यहां कहीं पड़ा हो, गाड़ी में, अजीब इसकी तासीर है। इसमें हिफाजत, जहन्नम से हिफाजत है अगर खात्मा ईमान पे हो गया है, कब्र के नकीरैन, बिच्छू, सांप, आग से हिफाजत है अगर खात्मा ईमान पे हुआ, और मेरे आका ने फरमाया मिसवाक करने वाले का खात्मा ईमान पे होगा। एक बहुत बड़े दुर्वेश थे, वो फरमाने लगे मुझे एक बाबे की आह ने यहां तक पहुंचाया। बाबे की आह ने, कहने लगा मैं दिल्ली के करीब, और ये बात कहां कब की है, ये बात आज से 85 साल पहले की है, कमोबेश 1-2 साल ऊपर हो जाए, लेकिन 80 साल पहले की, 85 साल पहले की है। वो दुर्वेश अभी पिछले साल फौत हुए हैं, 2 साल पहले। फरमाने लगे एक बाबा मिला, उसने जेब में ऐसे हाथ डाला, ऐसे हाथ डाला, लगा हाय क्या हुआ। कहने लगे मेरी मिसवाक खो गई, आज का वुज़ू मैं बगैर मिसवाक के करूंगा, और अगर मुझे मौत आ गई मेरा खात्मे का क्या बनेगा। लगे मैंने सोचा कि मैं इतना बड़ा आलिम हूं और ये अनपढ़ बाबा देहाती, इसके दिल में सुन्नत की ये कदर है, तो मेरे दिल में क्या होनी चाहिए थी। बस मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। बस एक पल में मुझे ख्याल आया, और उसके बाद मेरी जिंदगी के दिन रात, पहले भी नेक थे लेकिन अब तो ये बदले, वो लाखों करोड़ों की हिदायत का जरिया बन गए, और जरिया मिसवाक बना। नजर के लिए, याददाश्त के लिए, दिल के अमराज के लिए, जिस्म की ताकत और तासीर के लिए, केरे के लिए,
बलगम के लिए, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, दांतों की जुमला बीमारियां, अब पूरी साइंस वापस लौट रही है। किस चीज पे? कि बुरश इस्तेमाल न करो। बुरश से दांतों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, उन खिलाओं में ग़िज़ाओं के जर्रे बन जाते हैं। अरे बुरश इस्तेमाल न करो, मिसवाक इस्तेमाल करो। सारी साइंस लौट रही है। उठा के नेट की दुनिया देखें, मेरी बात की आपको तस्दीक मिलेगी। सारी साइंस वापस पलट रही है मिसवाक की तरफ। फिर कहा मिसवाक की लकड़ी के अंदर एक अपनी तासीर होती है, उसका रस अंदर जाता है मसूड़ों में, जिस्म में, थूकने के बावजूद भी उसका रस चला जाता है। थूकने के बावजूद भी बाज दवाएं ऐसी होती हैं, मुंह में रख के कहते हैं थूक दे, बंदा ठीक हो जाता है। मालूम हुआ कि अंदर से उसके तासीर जाती है। अगर नहीं जाती तो जहर बाज ऐसी होती हैं जो स्किन पे सिर्फ लगती हैं, जल्द पे लगती हैं, बंदा वहीं खत्म हो जाता है। अंदर जाती हैं। दर्द को खत्म करने वाली बाम, ऑइंटमेंट, तेल, मालिश जाती है तो अंदर का निजाम ठीक होता है। इसकी तासीर अंदर जाती है, इसकी कुव्वत अंदर जाती है, और जब तासीर कुव्वत जाती है तो अंदर के निजाम को, इस लकड़ी के अंदर के मौजूद जो A to Z विटामिन हैं या इसके अंदर शिफाई असरात हैं, ये मिसवाक है, और ये मिसवाक की तासीर है, और ये मिसवाक की ताकत है, और ये मिसवाक की कुव्वत है। सारी साइंस बुरश से हटके मिसवाक की तरफ आ रही है। सारी दुनिया के साइंसदान और दांतों के बड़े बड़े डॉक्टर बता रहे हैं कि अब मिसवाक इस्तेमाल करो। आ गया दौर मिसवाक का। फिर था हर दौर में हम भूले थे। सुन्नत की तासीर आज भी वही है, सुन्नत की ताकत आज भी वही है, और सुन्नत की कुव्वत आज भी वही है जो सदा थी और हमेशा रहेगी। साइंस की थ्योरियां बदल जाएंगी, लेकिन सुन्नत और सुन्नत की ताकत और मेरे मदीने वाले की अदाएं, आल और असहाब के उनके साथ निकली हुई वफाएं और औलिया कराम की सारी प्यार और मोहब्बत जिस चीज से, वो मिसवाक से था, और इसकी तासीर हमेशा रहेगी, इसकी कुव्वत हमेशा रहेगी, और इसकी ताकत हमेशा रहेगी। इस्तेमाल करें, अपने साथ रखें, जिंदगी का साथी बनाएं, जिंदगी का। मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, मैं गालिबन उस वक्त सेकंड ईयर में पढ़ता था। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, दूसरे शहर से पढ़ाने आते थे। हाईएस का हादसा हुआ, हाईएस का। 2-1 बच्चे सारे शहीद हो गए, फौत हो गए, मर गए। पुलिस आई, इलाके वाले जमा हो गए। मंजर देखे, मैं एक मंजर दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। सबकी जेबों की तलाशी हुई, सबकी जेबों की तलाशी। किसी की जेब से क्या निकला, किसी की जेब से ना निकला। पूरी गाड़ी में हमारे वो प्रोफेसर थे, उनकी जेब से जब मिसवाक निकला, लोगों की हाय निकल गई, आंसू निकल गए कि पहला आदमी है, मौत मौत है, मौत मौत है। उसका वक्त आ चुका था, अब कोई ताकत उसको नहीं हटा सकती। लेकिन मिसवाक हादसों से, मिसवाक जिंदगियों की राहतों को देता है, हादसों से बचाता है। और मिसवाक एक अदा देता है कि सबकी आंखें झुक गईं, आंसू थे कि इस शख्स की जेब से मिसवाक निकला। और वो क्या गोरा था, नौ मुस्लिम, जो यहां मिसवाक ताज बनाए फिर रहा था। और वो क्या शख्स था, नौ मुस्लिम, जो रुमाल के अंदर लपेट के टुकड़ा है कि इसको संभाल संभाल के रखे। और वो क्या सुन्नत और वो क्या अदब था मिसवाक के साथ कि चमड़े का थैला मेरी कब्र में साथ रख देना। और उन्होंने रख दिया कि मैं अल्लाह को सबूत के तौर पे जाके पेश करूंगा। जैसे एक दुर्वेश की दाढ़ी स्याह थी, आटा मल दिया, और आटा कहने लगे मल देना, और आटा मल के मुझे कफन में डाल देना, और कब्र में कि मौला सफेद बालों से तू हया करता है, मेरे बाल सफेद हैं, चलो बनावटी सही, तो इसी पे भी शफकत फरमा देता है।
یہ مسواک میڈیکل بھی اور صحت روحانیت بھی ہر لحاظ سے خیروں اور برکتوں کا پیٹرن اور ذریعہ ہے. آج کے بعد مسواک نہیں بھولیں گے اور اس کو اپنا ساتھی بنائیں گے اور اس کو اپنی نسلوں کا ساتھی بنائیں گے. خواتین استعمال کریں، اپنے پرس میں ساتھ رکھیں، مرد اپنی جیب میں رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں. اللہ پاک جل شانہ ہمیں مدینے والے کی اداؤں سے محبت عطا فرمائے، الفت عطا فرمائے اور یقین عطا فرمائے. اس یقین کے ساتھ آخری سانسیں ہوں، اس یقین کے ساتھ آخر آنکھیں بند ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں یہ تاثیر بھی اور یہ یقین بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان سنتوں کی برکات کو پھیلانے والا بنائے اور میرے وطن کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے اور وطن کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ